Good morning, students. How are you? I hope that you all are doing fine. So, students, we have already learned this multiplication of decimal, but right now the next is division of decimals. So, dividing a decimal by 10, 100, or 1000, etc. So, let's see. There are a few rules regarding the division process. Okay. So, these rules are on dividing a decimal by 10, the decimal point is shifted to the left by one place. I hope that you all remember that in the case of multiplication, the decimal is shifted to one right place, but here in case of division, the decimal will be shifted to left place. Clear? On dividing a decimal by 100, the decimal point is shifted to the left by two places because there are two zeros in 100. On dividing a decimal by 1000, the decimal point is shifted to the left by three places and so on. So here the decimal places is being shifted to the left side. Okay, so let's check the same thing with an example, and it is so like this: divide 16.8 by 10. So here when you have to divide this 16.8 by 10, then you have to write this way. Clear? Here the number 16.8 is being divided by 10 that has one zero. So therefore the decimal will be shifted to one place left. So from 16.8 to it becomes 1.68. Clear? Similarly, 236.4 divided by 100. So here 236.4 by 100 is written, and now the decimal point will be shifted to two left places, to two places in the left. Clear? 3709.6 divided by 1000. So here there are three zeros, therefore the decimal will be shifted to three places towards the left. So the number becomes 3.7096. And this example 2 is also the same point, same things, so you should not worry much about this. But now the next is dividing a decimal by a whole number. Dividing a decimal by a whole number. For example, if you have 0.5 and you have to divide by 2, so this is the case because the numerator part is a decimal and the denominator part is a whole number. So method: step 1, perform the division by considering the dividend by a whole number. Perform the division by considering the dividend by a whole number. यानी कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड मीन्स द थिंग विच इज गेटिंग डिवाइडेड, उसको आप एज अ होल नंबर समझ के डिवाइड करो. ठीक है ना? व्हेन द डिवीजन ऑफ होल नंबर पार्ट ऑफ द डिविडेंड इज कंप्लीट, put the decimal point in the quotient and proceed with the division as in case of whole numbers. ठीक है? पहले आप डिविडेंड को एज अ होल नंबर मान के डिवाइड करो. क्लियर? और जब आपका डिवीजन हो जाए उसके बाद आप डिवीजन जो है उसके बाद आप अपने क्वोशंट में जैसे जैसे डेसिमल पॉइंट चाहिए होगा वैसे वैसे डेसिमल पॉइंट लगा दोगे. लेट्स से फॉर दिस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल. For example, if you have to divide this 39.168 by 12. Clear? So consider this number as 39168. Simple. And when you have to divide this by 12, what will happen? 12 3s are 36, carry 3, then 1. 12 2s are 24, carry 7, and 6. 12 6 are 72. Clear? So here is the process of the division on the left. So while dividing we get the quotient like this: 3264. But in the dividend the decimal point is up to the three places. Clear? The decimal point is up to the three places. So here also in the answer we have to, also in the quotient we have to apply decimal to three places. Okay? For example, if I have to divide this 0.5 by 2, just try to understand with a smaller example. So
if you have to divide 0.5 by 2, you have to just divide by 2. Okay, so 2 2s are 4, 1s are 0.2, 5s are 10. Clear? So the answer comes to be 2.5, but there was a point as well in the question, there was a point as well in the dividend, therefore we'll shift a point by 1 and then answer becomes 0.25. ठीक है, चलो let's move. Divide 0.567 by 9. So here the same way you have to divide this 567 by 9, and here you get 0 will be 0 right there. 5, then again you have to take a 0 for 5 because there needs to be an extra 6. Then the number becomes 56. So 9 6 are 54 minus 2, like the difference is 2, and then it becomes 27, and 9 3 are 27. So here the process of division goes like this. The process of division goes like this: 63. But the point is there are 3 places of decimal, so you have to make it 3 places of decimal. Clear? Just take it this way, that if you have to divide this 567 simply by 9, how would you divide it? You will say, so that is 9 6 are 54, carry 3, carry 2, 7 9 3 is a 27. Okay, so the question that comes is 63, but in the quotient, in the question there are the dividend is अप टू द 3 प्लेसेस. जो क्वेश्चन में जो डिविडेंड है उसमें डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस तक दिया हुआ है, और अगर क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट 3 प्लेसेस तक है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, एक जीरो लगा के यहाँ पे 3 प्लेसेस तक बनाएंगे. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमारा आंसर आया 0.063. क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं. Now let's try to understand. Here is a remark that sometimes on dividing a decimal by a whole number, the last remainder obtained is non-zero. In such cases, insert as many zeros on the right of decimal part of the dividend as necessary to make the last remainder zero. Clear? कहने का मतलब ये कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आता है. जब ऐसा नहीं आता तो आप ज़ीरो लाते हो, लाइक दिस. जैसे मान लो कि अभी मैंने किया था 5/2 को, तो हमने क्या 2 2 4 किया, रिमाइंडर 1 आ गया, रिमाइंडर 0 तो आया नहीं. फिर हमने क्या किया, एक ज़ीरो लगाया, यहाँ एक डेसिमल लगाया, एक डेसिमल लगाया, उसके बाद एक ज़ीरो लगाया, देन 2 5 10 किया. बस वही चीज़ है, कुछ अलग इसमें नहीं कह रहा है. ठीक है ना, आओ देखते हैं कैसे. द नंबर इज़ 2.32 बाय द नंबर इज़ 2.32. It's not working. Why? Oh, the size of the eraser was a bit small. That's why it's not working. Huh. Anyways, so the number is 2.32. 2.32. So here, this 2.32 is divided by this way. So student, इन क्वेश्चंस को कैसे करना होता है? You have to do these questions in a way like, if the question is not like this but rather just 232 by 16. So in such cases, how will you conduct the division part? 16 ones are 16, remainder is 7, 2, 16 fours are 64, remainder is 8. So here the divisor is 16 and the remainder is 8. Means now the case is this divisor becomes more than the remainder. यानी कि अब तो डिवीजन प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, हमारा डिवीजन प्रोसेस यहीं आके रुक जाता है. लेकिन अगर हमें इसे डेसिमल में और फर्दर कंडक्ट करना है तो क्या करेंगे कि वील अप्लाई अ पॉइंट, अ डेसिमल
इन द क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन जो ऊपर आ रहा है, फाइनल जो आंसर हमारा आ रहा है, वहाँ पे हम एक डेसिमल लगाएंगे और रिमाइंडर में एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या हुआ कि अब नंबर 80 बन चुका है। अब इस 80 को 16 से अगर डिवाइड करना है तो कितनी टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 16 5 80 में हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइड हो गया। तो जो बच्चों आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 14.5। लेकिन हमने क्वेश्चन में से यहाँ देखोगे तो 232 रखा था, बट डेसिमल था कितने, 2 प्लेसेस पे। तो वही 2 प्लेसेस का डेसिमल हम लोगों को उसको लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेसेस का, वो जब लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो डेसिमल कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.145। ठीक है ना, 0.145। देखो यही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ करके। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, इसी तरीके से देखो ये भी हो जाएगा। जैसे 4838 रख दिया हमने, जैसे मान लो, और उसको बड़ा करके लिख देते हैं, 4838 हमने लिखा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 8 से। डेसिमल अभी देखो मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, तो 8 6 48। क्लियर। अब क्या हुआ कि जब हमने 3 यहाँ पे नीचे कैरी लिया तो डिवाइड तो होगा नहीं यहाँ पे। ऐसे केसेस में वी टेक एन एक्स्ट्रा ज़ीरो। ठीक है, वी टेक एन एक्स्ट्रा ज़ीरो। तो हियर इट बिकम्स, फिर हमने 8 भी नीचे उतार लिया। 8 4 32। 8 4 32। Then it becomes this way. Clear? Then after 8 7 56। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 8 के बाद मैंने एक ज़ीरो अपने आप लिया, तो यहाँ में एक डेसिमल हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, सो यही सेम प्रोसेस देखो यहाँ भी जा रहा है अपना। 6 फिर 0 फिर 4, देन हमारा जो एक ज़ीरो हमने यहाँ से उठाया 7 टाइम्स ले जाने के लिए, 56 लिखने के लिए, तो ये हो गया हमारा 56। देन आफ्टर क्या हुआ कि रिमाइंडर 4 आया, 4 फिर 0, फिर ये आपका 40 बन जाएगा। एंड 40 को फिर हम जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 5 40 टाइम्स में ये प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने भी इसको कहाँ तक रखा था, मैंने इसको भी कर रखा था अभी प्रीवियस वाले पेज पे 56 तक कर रखा था। ठीक है ना। तो मैंने क्या किया कि भाई इसको आप जस्ट अ मिनट, यहाँ पे था 60, यहाँ पे 60 था, तो 8 7 56 टाइम गया, रिमाइंडर 4 आया और 8 5 40, 8 5 40 टाइम ये चला गया, 8 5 40 टाइम्स ये चला गया। तो जो बच्चों अभी हमारा आंसर आया वो आया 604.75, जो मैंने अभी डिवाइड करके दिखाया। ठीक है, बट क्वेश्चन में डेसिमल प्लेसेस 2 है, तो हमने क्या किया, दो डेसिमल प्लेसेस को उसको लेफ्ट में मूव कर दिया, तो ये बन गया 6.0475। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर क्या है हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर है 6.0475। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। और देखो यही चीज़ यहाँ पे भी है, जो एक नेक्स्ट काइंड ऑफ डिवीजन यहाँ पे दिया हुआ है 202.4 डिवाइडेड बाई 40। सो यहाँ पे क्या करना है कि हमने 202.4/4 इंटू 10 कर देना है। इंटू 10 करने से क्या बेनिफिट होगा, देखो क्या बेनिफिट होगा, बिकॉज इसका जब हम डिवीजन करेंगे 202.4 का जब हम डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा 4 5 20, 2.6। ठीक है, ये आपका 6 टाइम में चला गया, आंसर आ जाएगा 50.6। क्लियर। अब 50 यानी इस पार्ट का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 50.6, और ये 10 तो नीचे है ही है, तो क्या बन जाएगा 50.6/10 इज इक्वल टू 5.06। हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आई होप कि जब आप लोग इतनी चीज़ें सीख चुके हो, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज, जो मैं भी आपको आपका होमवर्क बता रहा हूँ, एंड यू हैव टू कंप्लीट दोज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 3D में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर, जस्ट अ मिनट बच्चों,
क्वेश्चन नंबर हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग बच्चों बहुत आराम से कर सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हो, यस। क्वेश्चन नंबर 7 भी यू ऑल कैन डू. So you have to do this question number 1, question number 2, question number 3, question number 4, 5, 6 एंड यस चलो 7 6 तक करो, 6 तक क्वेश्चन तक करो आप लोग, और इसे फिनिश करके मेरे को होमवर्क इसका सेंड करो, ठीक है ना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे।